Hello student, good morning all of you. Now in this video we have to discuss about exercise 7.1 from question number 5. Before discussing this question, first of all we have to learn some basic concept about quadrilateral. The main four quadrilaterals are rhombus, square, parallelogram and rectangle. We have to discuss about the basic property of this. Okay, rhombus में क्या होता है कि चारों vertices, this shape is a rhombus, A, B and C are four vertices of this. Now in the rhombus all four sides are equal. All four sides means what? AB is equal to BC is equal to CD and is equal to AD. You know this very well. All four sides are equal. ठीक है. But in square, स्क्वेयर में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये स्क्वेयर है ABCD, देन 1 2 3 एंड 4, ये चार साइड इसमें इक्वल तो होगी ही. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ओके, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड beside this the one condition is applied, diagonals are equal. AC is one diagonal and BD is second diagonal. Also diagonal is equal. Diagonals are equal. AC is equal to BD. ठीक है. जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी स्क्वेयर होगा. अगर सिर्फ चारों साइड इक्वल होगी तो आप इसे स्क्वेयर कह सकते हैं नहीं. ठीक है, उसे आपको क्या कहना पड़ेगा? रोम्बस. क्लियर? ठीक है. इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल देन इट इज रोम्बस, बट इफ ऑल फोर साइड्स and diagonals are equal then it is square. Clear? Now what about in parallelogram and rectangle? Parallelogram, the diagram you know very well. It is a parallelogram. Okay, four vertex are present, A, B, C and D. So AB की opposite side कौन सी है? CD. मतलब opposite side are equal. AB is equal to CD and AD is equal to BC and AD is equal to BC. Clear? Opposite sides are equal then it is parallelogram. Clear? But what in rectangle? Rectangle में मान लीजिए कि ये rectangle है, then A, B, C and D. Opposite sides are also equal. ठीक है. AB is equal to CD and AD is equal to BC. Also diagonal are equal. AC and BD दोनों diagonal भी equal हो गए. ठीक है. AC is equal to BD. क्लियर? तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ती है और डायगोनल भी सेम होने चाहिए. डायगोनल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? सो अगर ऐसा रोम्बस, स्क्वेयर, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूव करना है तो आपको कितनी थिंग्स फाइंड करनी पड़ेगी? टोटल 6 थिंग्स आर प्रेजेंट. ओके, 4 साइड एंड 2 डायगोनल. क्लियर? अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो स्क्वेयर होगा, वरना नहीं. ठीक है. और अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल.
ओके, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। क्लियर? नाउ अब ये देखिए ए बी मतलब व्हाट? ए बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो स्क्वेयर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये 4 क्वाड्रिलेटरल को आपको प्रूव करने के लिए आपको 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? ये बेसिक थियरी आपको, दिस बेसिक थियरी इज सो इम्पोर्टेंट टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल्स, okay, by using distance formula. Okay, now let us discuss about your question number 5. What is in question number 5? Learn the question carefully. In this question one diagram is given, so observe the diagram carefully. There are 4 students are available. Okay, you have this type of diagram is given. Here is A, here is B, here is C and here is D. Okay, 4 students are sitting in the classroom and 2 girls are entering in the classroom. They observe the classroom and observe the 4 students and then discuss to each other. The name of these 2 girls is Champa and Chameli. Champa and Chameli. This type of description is given in your textbook. So please learn this theory carefully, learn this question carefully. Okay, now they are discussing to each other that Champa said to Chameli that, you know, these 4 students looks like are sitting in the shape of square. चंपा चमेली को कहती है कि ये चारों स्टूडेंट स्क्वायर के शेप में बैठे हुए हैं बेंच पर। तो चमेली उसको रिप्लाई देती है, नो आई डोंट थिंक दे आर सिटिंग और नॉट। चमेली इज डिसएग्री विद द ओपिनियन ऑफ चंपा। तो अब क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है कि कौन करेक्ट है, चंपा सही है या चमेली। फ्रॉम दिस 2 गर्ल्स हु इज राइट। क्लियर? Okay, so the coordinates of 4 students A, B, C and D are not given in your question, but I find it. Okay, आप लोग फाइंड कर सकते हैं A, B, C and D का कोऑर्डिनेट जो डायग्राम दिया है उसमें से पहले x कोऑर्डिनेट ध्यान में लेना होता है, फिर y कोऑर्डिनेट ध्यान में लेना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3, 4 कैसे आया। ठीक है, तो ऐसा आपके पास डायग्राम है, यहाँ पर A पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होगा 3 और यहाँ पर क्या होगा 4। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 4। पहले x एक्सिस आएगी फिर y एक्सिस आएगी। ऐसे आप लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है कि ये दोनों में से कौन सही है। तो मुझे 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। 6 टाइम मतलब किसके लिए? तो देखिए ये 4 कोड, उसके लिए ये 4 वर्टेक्स है, उसके लिए पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी फाइंड करेंगे, फिर हम सी डी फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, ये चारों के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 4 साइड पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम ए एंड बी को कंसीडर करेंगे। 3 - 6 ये डिस्टेंस फॉर्मूला है एंड 4 - 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 3 - 6 -3 स्क्वायर एंड 4 - 7 -3 स्क्वायर। सो -3 स्क्वायर 9 एंड -3 स्क्वायर 9, 9 + 9 √18। √18 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3√2। कैसे आएगा 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 3 और 2 का नहीं निकलता। ठीक है, तो ये √18 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, सो ए बी मुझे मिला 3√2। अब बी सी के बारे में, बी सी तो हम बी एंड सी कंसीडर करेंगे। ये बी और सी देखेंगे, बी एंड सी क्या आएगा बोलिए 6 - 9 स्क्वायर, 6 - 9 स्क्वायर एंड प्लस 7 - 4 स्क्वायर। 6 - 9 मीन्स -3 स्क्वायर एंड 7 - 4 मीन्स 3 स्क्वायर।
-3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 9 18 होगा और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 3√2। तो BC भी मुझे क्या मिला 3√2। ये AB मिला, ये BC मिला। अब CD और AD के बारे में डिस्कस करते हैं। CD पहले हम CD देखते हैं। C एंड D, अब हम C और D पॉइंट को फॉलो करेंगे। C एंड D मतलब 9 - 6 एंड 4 - 1, ठीक है। 9 - 6 स्क्वायर एंड 4 - 1 स्क्वायर। सो 9 - 6 3 स्क्वायर एंड 4 - 1 इज 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 18 का स्क्वायर रूट 3√2। तो CD क्या मिला अभी आपको 3√2। अब AD की बारी, तो हम अब A एंड D को देखेंगे। A 3 - 6, ठीक है। AD 3 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर, 4 - 1 स्क्वायर, ठीक है। सो 3 - 6 क्या आएगा -3 स्क्वायर, 4 - 1 क्या आएगा 3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 एंड 9 18 होगा एडिशन, 18 का स्क्वायर रूट 3√2। तो ADB क्या मिला आपको 3√2, ठीक है। तो ये 4 साइड मिली आपको, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड मिली। चारों साइड AB, BC, CD एंड AD, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल है तो आपके पास क्या आता है रोम्बस और स्क्वायर। 2 ऑप्शन है आपके पास, ये रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर। रोम्बस तो है पक्का क्योंकि चारों साइड इक्वल है, रोम्बस है, ठीक है। बट स्क्वायर है या नहीं है उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, सोचो। उसके डायगोनल, डायगोनल कौन से हो गए ABCD अगर वर्टेक्स है तो डायगोनल कौन सा होगा, पहला डायगोनल क्या होगा AC और दूसरा डायगोनल क्या होगा B एंड D। तो पहले हम AC फाइंड करेंगे, डायगोनल AC। तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे A एंड C 3 - 9, ठीक है। 3 - 9 स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर। सो 3 - 9 -6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होगा +36 और उसका स्क्वायर रूट क्या मिला 6। तो AC आपको मिला 6। अब दूसरा डायगोनल B एंड D, B एंड D के बारे में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो B एंड D 6 - 6 होगा, ठीक है। 6 - 6 स्क्वायर एंड 7 - 1 स्क्वायर, 7 - 1 स्क्वायर। तो 6 - 6 0 एंड 7 - 7 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा और आंसर क्या आएगा 6। तो BDB क्या मिला 6। क्लियर। सो वी हैव टू राइट हियर AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and 4 sides are equal, 4 sides are equal and AC is equal to BD. AC is equal to BD. AC is equal to BD means diagonal are equal. Hence ABCD is square. ABCD क्या है स्क्वायर है। अब ये दोनों में से कौन कह रहा था कि ये स्क्वायर है, चंपा कह रही थी कि चारों स्टूडेंट्स स्क्वायर के शेप में बैठे हुए हैं, चमेली ना कहती थी, ठीक है। सो चंपा इज राइट। सो चंपा इज राइट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में चंपा सही है कि चंपा ये कह रही थी कि ऑल 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पहले आपको चेक करना है कि 4 पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन प्रेजेंट है कि 4 पॉइंट में से कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोम्बस है, कौन सा ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है और कौन सा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आप लोगों को कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी 6 टाइम, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छी तरह से ध्यान देना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट होगा नहीं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। क्लियर।